Hello, dear students. Today we will start the history part, and first and foremost, we will discuss about birth history. Birth history, as such, is not only the history of birth events, but it can include the antenatal part of the history, the perinatal or intranatal part of the history, and neonatal history. Thus, we can divide birth history basically in three parts: antenatal, perinatal, and neonatal. And in today's class, we will discuss only about antenatal part. Birth history altogether is history of series of events right from the health of gamete, fertilization, development in utero to the birth events and neonatal period history. It is important to identify the cause, pathogenesis, or sometimes the diagnosis itself. A thorough birth history is the essence in the process of diagnosis of developmental as well as birth defects. So we can say that there are three basic parts of birth history. Antenatal, wherein we will assess by the history that the gametes were healthy, there was no genetic problem or mutated genes was not present in the gametes. So the antenatal history may include genetic disorders in mother or father or likewise, and then fertilization, how and when, in which condition, in which environment fertilization occur, then development in utero, any untoward effect of maternal illness, drugs, or exposure to radiation or nutrition, which may result in some problems in the baby. These all are part of antenatal. Then birth events are natal history or birth history, true birth history, and then neonatal period history, that may be postnatal history. So these are three basic components of birth history, and this birth history is very much required sometime to identify the cause of some, may say, the developmental delay, or we may say that there are some congenital anomalies and we want to identify the cause of that congenital anomaly. Then birth history may give some clues, and sometimes birth history may give diagnosis itself, and it is very much required for these two types of disorders, that developmental defects and birth defects. Does birth history required in every pediatric case? No, birth history is not required in every pediatric case. Especially, it is required in newborns, when we want to examine newborn and newborn, neonates, and infants. Birth history is essential. Then there are two or three conditions where birth history we should take in any age child. We may say that there is 8-year boy having some congenital heart disease, then we may take birth history of that particular child. So we have to take birth history in cases of developmental delay. बच्चा 4 साल का हो गया, he is not able to speak or not able to walk, then we have to take birth history to identify the basic etiology or pathogenesis of that particular developmental delay. Then various cases of congenital anomalies, we have to take birth history. And persons or child with the failure to thrive since birth, if the condition of failure to thrive or underweight or malnutrition is right from the birth, we have to take birth history. Then parts of birth history हम बार बार बात कर रहे हैं, antenatal, perinatal and postnatal. Today we will discuss only antenatal history. Antenatal history, we can divide it into preconceptional, that is before fertilization, and postconceptional, after fertilization history. तो प्रिकॉन्सेप्शनल हिस्ट्री में हम बात करते हैं राइट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मैटरनल बर्थ वेट एंड जेस्टेशनल एज. तो इतना पीछे मे बी मदर इज़ नॉट नोइंग हर बर्थ वेट एंड जेस्टेशनल एज, बट इफ़ अवेलेबल वी शुड रिकॉर्ड इट, बिकॉज कि इसमें विशियस साइकिल होता है. इफ़ मदर वाज बोर्न प्रीटर्म और वाज हैविंग अ लो बर्थ वेट, she may develop into a adult with less height or with some
nutritional deficiencies or some physical incapabilities, and there may be vicious cycle that small sized mother will produce small sized baby, and if the baby is girl child then it again will produce small sized baby. तो उसके लिए जो है हमको मदर्स बर्थ वेट और उसके जेस्टेशनल एज की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी. देन मोर इम्पोर्टेंट इज़ एज एट कंसेप्शन एंड एज एट मैरिज. यूजली इंडियन कल्चर में जो है दे मे नॉट बी giving us true history about the gap between marriage and conception. There may be some problems, genetic problems, which may have resulted in various problems like multiple abortions. But in Indian culture, abortion may be हिडन, और अबॉर्शन को जो है छुपाया जाए, तो उसको रूल आउट करने के लिए, उसको निकालने के लिए वी मे टेक एज एट मैरिज एंड एज एट कंसेप्शन की. शादी कितने साल पे हुई थी जी? 20 साल की थी. बच्चा कब हुआ था? 30 साल की. 10 साल क्यों नहीं हुआ? देर में भी मल्टीपल हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल अबॉर्शंस और स्टिल बर्थ कि पहला बच्चा ही है, बट उससे पहले स्टिल बर्थ हुई हो, अबॉर्शन हुई हो, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री होती है. तो एज एट मैरिज एंड एज एट कंसेप्शन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. देन वेरी इंपॉर्टेंट इज़ प्री कंसेप्शनल वेट, हाइट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर. कि मदर का हाइट वेट, जैसे अगर हाइट इज़ लेस दैन 140 सेंटीमीटर और वेट प्री प्रेगनेंसी वेट इज़ लेस दैन 45, इट इज़ हाई रिस्क ऑफ प्रोड्यूसिंग LBW बेबी, कि उसका बच्चा जो लो बर्थ वेट होगा या प्रीमेच्योर हो सकता है. तो और न्यूट्रिशनल स्टेटस जैसे एनीमिक है, मालनरिस्ट है, तो उनमें भी बच्चे में एनीमिया, माल न्यूट्रिशन हो सकता है. तो इस तरह की हिस्ट्री भी जो हमको ज़रूरी होती है. दैन प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री ऑफ मदर, लाइक पैरिटी की कितने बच्चे हैं, लाइव कितने हैं, अबॉर्शंस कितने हो गए हैं, स्टिल बर्थ हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, जैसे मल्टीपैरा अगर 4 बच्चे हैं तो लास्ट डिलीवरी इन दोनों बच्चों में बर्थ ऑर्डर क्या है. जो प्रेजेंट जो केस है हमारा, जो बच्चा है वो उसका बर्थ ऑर्डर क्या है, सेकंड नंबर का है, थर्ड नंबर का है. थर्ड नंबर का है तो सेकंड से कितना छोटा है, कितना जो है इंटरवल था प्रेगनेंसी के बीच में, बिकॉज इल स्पेस्ड प्रेगनेंसीज में आल्सो बी द कॉज ऑफ malnutrition and it may also result in prematurity. then कोई complications तो नहीं हुई थी प्रेगनेंसी के दौरान, प्रीवियस डिलीवरी के दौरान या प्रीवियस प्रेगनेंसीज में, जैसे प्री एक्लेम्सिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, या इस प्रेगनेंसी में जो है हालांकि प्रीकंसेप्शनल ले रहे हैं हम, तो प्रीवियस प्रेगनेंसी की बात करेंगे कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में RH इनकम्पेटिबिलिटी वगैरह तो नहीं थी. जैसे न्यूबॉर्न में हम बर्थ हिस्ट्री ले रहे हैं तो उसमें इस वाली प्रेगनेंसी का तो हमको पता नहीं है RH इनकम्पेटिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, बट प्रीवियस की हम पूछ सकते हैं, या प्रीवियस प्रेगनेंसीज में कोई भी दिक्कत हुई है तो उससे रिलेटेड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री हमको लेनी है. तो हर एक चीज़ की जो है इसमें वैल्यू रहेगी, हर एक चीज़ हमको कुछ ना कुछ बताएगा. दैन एंटीनेटल हिस्ट्री पोस्ट कंसेप्शनल. अब ये तो सारी चीज़ें थी कि कंसेप्शन से पहले क्या क्या कहानी थी, क्या क्या हिस्ट्रीज थी मदर की, मैरिज कब हुई थी, कब बच्चा कंसीव किया था, बच्चे का बर्थ ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इंटरवल कितना है बच्चों में, प्रीवियस प्रेगनेंसीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, लाइक वाजू तो या प्री प्रेगनेंसी हाइट वेट क्या था मदर का, वो सारी जो है प्री कंसेप्शनल थी. अब बात करते हैं कंसेप्शन के बाद की. तो कंसेप्शन के बाद में जो है मैटरनल इलनेसेस तो नहीं हुई हैं, बिकॉज दीज इलनेसेस कैन रिजल्ट इन these illnesses can result in prematurity. They may affect the growth of the fetus, or they may have deleterious effect on the embryonic growth of the fertilized ovum. That is, they may act as a teratogen. Various disease condition may act as a
टेराटोजन। तो maternal illnesses में acute illnesses like fever, diarrhea, they may precipitate delivery, or they may cause intrauterine growth retardation. Chronic illnesses usually results in IUGR, जैसे बहुत सारे नाम लिखे हैं हमने, जिसमें डायबिटीज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिखा है कि डायबिटीज़ यूजुअली प्रोड्यूस मैक्रोस्मिया, और आगे हम बात करेंगे और भी बहुत सारी कंडीशंस डायबिटीज़ कर सकता है। डायबिटीज़ कैन कॉज CRS, जैसे हमने congenital anomalies में भी बात करी थी कि कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम डायबिटीज़ के कारण हो सकता है। बाकी जितने भी कंडीशंस हैं दे यूजुअली प्रोड्यूस दिस LBW बेबीज। लो बर्थ वेट होने के पीछे बहुत बड़ा कारण रहता है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, CCF है, congenital हार्ट डिजीज़ है मदर में, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, क्रोनिक रेनल फेलियर है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, इस तरह से कोई भी क्रोनिक डिसऑर्डर है, यूजुअली दे रिजल्ट इन मैटरनल increase metabolic rate, and fetus is not being provided sufficient nutrition, so that there is intrauterine growth retardation, and overall there will be low birth weight babies. Then there are some maternal illnesses which usually causes transplacental this infection, or a transplacental communication of the infectious agent, uh, and they may act as teratogen for various organ systems. तो दो टर्म्स जो हम बार बार बात करते हैं उसके लिए, टॉर्च एंड स्टार्च। टॉर्च में T फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O फॉर अदर्स, R फॉर रूबेला, C फॉर CMV साइटोमेगालोवायरस, H फॉर हर्पीज और मे बी हेपेटाइटिस V। एंड स्टार्च में लगभग वही चीज़ें हैं, A फॉर HIV एड्स एंड S फॉर सिफिलिस। ये यूजुअली जो है कंजेनाइटल सिफिलिस, कंजेनाइटल रूबेला, कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इस तरह की डिजीज कॉज करते हैं या फिर टेराटोजेनिक एक्ट करते हैं। देयर आर सम examples of maternal disorder and its effect on fetus, like diabetes mellitus. अब diabetes, जैसे इंडिया is now hub of lifestyle disorders, mainly diabetes and obesity. तो डायबिटिक अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, हाइपरग्लाइसीमिया ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इट इज़ वेरी हाई रिस्क ऑफ प्रीटर्म डिलीवरीज और congenital anomalies ऑफ CNS, जो हमने बात करी थी कि कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम होता है। CVS में congenital anomalies हो सकती हैं, या skeletal सिस्टम में भी congenital anomalies हो सकती हैं डायबिटिक मदर के बेबीज़ में। देन macrosmia is large size of the baby एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे मैक्रोस्मिया में जो है बर्थ इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस तरह से जो है बर्थ इंजरी के कारण पता चला कोई और आगे प्रॉब्लम हुई, डेवलपमेंटल डिले हुआ। हाइपोग्लाइसीमिया, hypocalcemia is also common in babies of diabetic mother. Then RDS, respiratory distress syndrome है, caudal regression syndrome है, small left colon syndrome, and they are also found in babies of diabetic mother. Hypertension usually causes uteroplacental insufficiency, and this results into IUGR. Asthma may also cause, any chronic illness will cause growth retardation, and anemia usually cause LBW babies. और एनीमिया में एक मदर का एनीमिया है तो बेबी मे बी एनीमिक और मे नॉट बी एनीमिक, इट डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ एनीमिया इन द मदर। बट एक जो बड़ी चीज़ देखने में मिलती है, इट इज़ द बर्थ लेंथ एंड हेड सरकमफ्रेंस, कि यूजुअली जो एनीमिक मदर्स के बेबी होते हैं दे आर हैविंग लेस लेंथ एज वेल एज हेड सरकमफ्रेंस, तो ब्रेन ग्रोथ और अफेक्ट होती है। यूजुअली IDA आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रहता है इंडिया में, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें कि देखा गया है कि इफ़ fetus have low iron input, or mother is having iron deficiency anemia or iron deficiency anemia during infancy, toddler stage or preschool age, may have deleterious effect on IQ development of the baby. तो यहाँ भी हेड सरकमफ्रेंस अफेक्ट होती है एनीमिया में। देन SLE है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। SLE में यूजुअली हार्ट ब्लॉक्स देखे जाते हैं बच्चे में। फिनाइल कीटोन्यूरिया में मेंटल रिटार्डेशन इज़ अ कॉमन फाइंडिंग।
देन कौन कौन से जो है इन्फेक्शियस एजेंट मदर में होने से बेबी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या बेबी को जो है ट्रांसप्लेसेंटली जा सकते हैं। तो वायरसेस में सीएमबी है, पार्वो है, रुबेला, रोजियोला, हर्पीस, वेरिशेला, कॉक्सेकी, माम्स। पैरासाइट्स में टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉमन है। बैक्टीरिया में स्ट्रिप्टोकोकस है, लिस्टीरिया है, लिस्टीरियल डायरिया जो है यूजुअली बच्चे में प्रीटर्म्स अगर मेकोनियम पास करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ड्यू टू लिस्टीरिया। देन ग्राम नेगेटिव कुछ बैक्टीरियाज हैं जैसे इकोलाई है, क्लैमिडिया। क्लैमिडिया यूजुअली कॉजेज ट्रैकोमा, दैट नाइसेरिया गोनोरिया, और जो है क्लैमिडिया कॉज ऑप्थेल्मिया नेनोटोरम। देन देर आर स्पायरोकिटे सिफिलिस जैसे ट्रेपेनोमा पैलिडियम है, माइकोप्लाज्मा। दे में कॉज फिटल इन्फेक्शन। तो उनके कारण जैसे स्टार्च के कारण जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्टार्च ऐसे सिफिलिस में कॉन्जेनिटल सिफिलिस जिसमें हिपेटोमेगाली, जॉन्डिस, हेमोलिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मैक्युलोपेपुलर रैश होते हैं कॉमनली। टॉक्सोप्लाज्मोसिस हमने हाइड्रोस्पेलस में बात की थी कि एक्वाडक्टल स्टेनोसिस यूजुअली टॉक्सोप्लाज्मोसिस के कारण होती है, इसलिए हाइड्रोस्पेलस इज वन ऑफ द कॉमन effect of the toxoplasmosis. Then there may be seizures, unilateral microphthalmia, eye diseases, intracranial calcifications. HIV usually causes spontaneous abortions, stillbirth, IUGR, preterm, और न्यूरोडेवलपमेंटल डिले। रूबेला एक बहुत माइल्ड सी डिजीज़ होती है मदर में, बट इट हैव वेरी डिलीटीरियस इफेक्ट ऑन फिटस, और उसमें मल्टीपल डिफेक्ट्स इन आइज लाइक कैटरैक्ट, माइक्रोऑप्थेल्मिया। कार्डियक में जो है VSD या PDA या पल्मोनरी स्टेनोसिस यूजुअली जो रूबेला में देखी जाती है। न्यूरोलॉजिकल में डेफनेस है, मेंटल रिटार्डेशन है, या इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ भी जो है कॉन्जेनिटल रूबेला के साथ एसोसिएटेड पाया गया है। CMB में यूजुअली सेंसिटिव न्यूरो हियरिंग लॉस और मेंटल रिटार्डेशन जो है देखा जाता है। हर्पीज में एंसेफेलाइटिस और कोरियोरेटिनाइटिस, दिस मायोकार्डाइटिस वगैरह देखने को मिलती है। जबकि हेपेटाइटिस बी में कंजेनिटल या फिटल नियोनेटल हेपेटाइटिस हो सकती है। इसके अलावा अदर्स में जैसे कॉक्सेकी है, पार्बो है, तो कॉक्सेकी में यूजुअली मायोकार्डाइटिस या मेनिंजाइटिस, इंक्रीज रिस्क ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। ऐसे कॉक्सेकी बाद में भी जब होता है तो इट इज़ वन ऑफ द कल्प्रेट बिहाइंड autoimmunity for this type 1 diabetes. Then मैटरनल इलनेस के अलावा है मैटरनल मदर्स एक्सपोजर टू वेरियस टेराटोजेंस। तो अगर मदर कोई ड्रग्स ले रही है, यूजुअली टेराटोजन का कंसेप्ट की हमने कॉन्जेनिटल एनोमलीज में बात करी थी कि टेराटोजन यूजुअली अफेक्ट्स अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ कि पहले कुछ हफ्तों में जो 3 से 8 हफ्ते एम्ब्रियो होता है, उस टाइम अगर कुछ इस तरह की सब्सटेंस मदर में जाते हैं जो कि फीटस या दिस एम्ब्रियो की होम्योस्टेसिस को बिगाड़ते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेल्स की ग्रोथ को अरेस्ट करते हैं, तो जिस कारण से जो है यूजुअली स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होते हैं ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में। तो टेराटोजेंस में जो हमने पहले बात करी थी कि टेराटोजन का कंसेप्ट ड्रग्स से आया था, थैलिडोमाइड से। थैलिडोमाइड बेबीज़ हुआ करते थे जब थैलिडोमाइड एक ट्रैंकुलाइजर या स्लीपिंग पिल होती थी प्रेग्नेंट लेडी के लिए 1950s 1960s में। तो उसमें देखा गया कि स्मॉल साइज लिम्फोकोमिलिया, एमिलिया जो लिम्फ एब्सेंस होना, उससे कंसेप्ट आया था कि दीज ड्रग्स कैन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो और फिटस। तो अब बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में नोन है टू कॉज सम टेराटोजेनिक इफेक्ट, बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी पता नहीं है बट दे मे बी। तो इसलिए बहुत सारी ड्रग्स जो हैं दे आर नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी। कुछ एक एग्जांपल्स हैं जैसे एंटी कन्वल्सेंट, बालप्रेट जो हमने देखा था कि एंटीडीज के पीछे कारण था। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट में भी एंटी कन्वल्सेंट्स एक जो है कॉमन कॉज रहता है। तो बालप्रेट है, कार्बामेज़पिन है, फेनिटोइन, फिटल जो फेनिटोइन सिंड्रोम की बात करते हैं, तो एंटी कन्वल्सेंट्स ये जो है यूज़ नहीं करते हैं। मल्टीपल थेरेपी नहीं होनी चाहिए प्रेग्नेंट में, एंटी कन्वल्सेंट मोनोथेरेपी की तरफ जाते हैं उसमें।
एंटी हाइपरटेंसिव जो रूटीन यूज़ की जाती हैं यूजली दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज दे हैव हाई टेंडेंसी ऑफ टेराटोजेनिक इफेक्ट्स। तो उसमें एसी इनहिबिटर्स जैसे एनालोप्रिल, रमिप्रिल वगैरह यूज़ करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स, एटेनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल ये जो हैं नहीं दिए जाते हैं प्रेगनेंसी में। देन एंटी डिप्रेसेंट्स लाइक लिथियम, एंटीकोगुलेंट लाइक वारफरिन, एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन सब जानते हैं कि दे अफेक्ट यूजली बोन्स एंड टेट्रासाइक्लिन अगर प्रेग्नेंट लेडी यूज़ करती हैं तो बच्चे में जब टीथिंग होती है तो येलो टीथ या येलो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ देखी जाती है। सल्फोनामाइड्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं यूजली स्ट्रिप्टोमाइसिन या कैनामाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। दे यूजली कॉजेज डेफनेस। जैसे जैसे उनका जो है एडल्ट्स में या बच्चों में साइड इफ़ेक्ट होते हैं वैसे ही फीटस में भी होते हैं। दे कैन डैमेज हेयर सेल्स एंड कॉज डेफनेस। सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, it usually is related with cartilage growth and joint and bone problems. Then oral hypoglycemic drugs, and they are also contraindicated during pregnancy. Then vitamin A and its derivatives like as isotretinoin. आइसोट्रेटिनोइन यूजली एक्ने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर जो है रिप्रोडक्टिव एज फीमेल एक्ने के लिए आइसोट्रेटिनोइन यूज़ करती है तो बहुत सारे जो है जैसे एंटीडीज़ में भी एक मेजर कारण है आइसोट्रेटिनोइन। दैन एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स हैं, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फामाइड हैं, तो इनका भी जो है टेराटोजेनिक इफेक्ट देखे गए हैं। देन अदर टेराटोजन में है हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू रेडिएशन। एक्सरेज जो अर्ली प्रेगनेंसी में एक्सरेज या सीटी स्कैन्स कराए जाते हैं, या एक्सरे टेक्नीशियन हैं उसमें भी एक्सपोजर के चांसेस हो सकते हैं। तो उनका एक्सपोजर की हिस्ट्री तो नहीं है क्योंकि रेडिएशन कैन आयनाइजिंग दिस रेडिएशन कैन कॉज growth arrest of some particular structures resulting in congenital anomalies. Then third thing which may affect the growth and act as teratogen are maternal substance abuse. एंड इसके बारे में हमने बात कर ही ली थी। स्मोकिंग में कॉज प्लेसेंटा प्रीविया या एब्रप्सिव प्लेसेंटा, स्टिल बर्थ, लो बर्थ वेट, मेंटल रिटार्डेशन, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, हाइपर एक्टिविटी, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट में भी जो है स्मोकिंग के इंसिडेंसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। स्मोकिंग में इनके इंसिडेंसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। आज मैं देख रहा था एक जगह जो है CTE जो कनाइटल टेलिफसिकनोवायरस था उसमें भी स्मोकर्स मदर्स में जो है के बेबीज़ में CTE ज़्यादा देखने को मिलता है। देन अल्कोहल तो बात बार बार हो रही है कि चरक ने भी बताया है और बाद में भी अभी भी आता है कि इट कैन कॉज माइक्रोस्पेली मेंटल रिटार्डेशन और सम स्पेसिफिक फेशियल अपीयरेंस that is known as fetal alcohol syndrome और skeletal anomalies। हीरोइन का अब्यूज़ करती है मदर तो इरिटेबिलिटी या हाइपर एक्टिविटी मिलती है बच्चों में। दैन पोस्ट कंसेप्शनल एंटीनेटल हिस्ट्री जो मैटरनल न्यूट्रिशन के बारे में हिस्ट्री लेनी है और कि मदर में कोई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन ऑफ सम विटामिन्स तो नहीं था, उसके बारे में हिस्ट्री लेनी है। दैन हिस्ट्री ऑफ सप्लीमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले भी बात करी है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन अगर प्री कंसेप्शनल और पेरी कंसेप्शनल नहीं होता है तो देर आर रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंटिटीज़। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड दिया जाता है। तो फॉलिक एसिड दिया कि नहीं दिया, जैसे कोई 4 years चाइल्ड केम टू अवर OPD दैट देर इज़ सम टफ्ट ऑफ हेयर ओवर लोअर बैक, तो उसमें हमको हिस्ट्री में वहाँ दिख रहा है हमको कि वो जो है साइन ऑफ स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा है। तो जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, CT MRI कराएंगे, तो वी मे हैव सम इंटरनल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो उसमें फॉलिक एसिड की हिस्ट्री मदर में लेनी ज़रूरी हो जाती है कि क्या आपने फॉलिक एसिड लिया था प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले पेरी कंसेप्शनल पीरियड में कि नहीं लिया था। तो सप्लीमेंटेशन में फॉलिक एसिड की हिस्ट्री। देन आयरन की हम बार बार बात कर रहे हैं कि आयरन अगर नहीं लेती है मदर तो हेड सर्कम्फ्रेंस, IQ ये बच्चे में अफेक्ट हो सकता है। एनीमिक तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो डिलीटीरियस इफेक्ट हैं, कैल्शियम
Calcium sometimes have positive effects, sometimes have negative effects. Calcium supplementation may cause some negative effect in fetus as well. देन लास्ट वन इज़ वैक्सीनेशन. तो यूजली जो हम प्रेगनेंसी में लगाते हैं 2 डोज टीटी के टेटनस टॉक्सॉइड के लगाए जाते हैं, जो कि लास्ट डोज शुड बी एटलीस्ट 1 मंथ प्रियर टू द डिलीवरी, कि 8th मंथ में लग जाना चाहिए, 7th मंथ में जो है सेकेंड डोज लगनी चाहिए. अगर आप बहुत जल्दी लगाया तो 3rd डोज में भी गिवन एट 8th वीक. बट डिलीवरी से पहले 1 महीना पहले जो है बूस्टर डोज लग चुकी होनी चाहिए टीटी की. अगर टेटनस नहीं लगा है और बेबी को 3rd 4th डे जो है कन्वल्जन्स आ रहे हैं, तो इट मे बी ड्यू टू टेटनस. तो वहाँ पे हिस्ट्री जो है न्यूबॉर्न पीरियड में कन्वल्जन्स आ रहे हैं और आप हिस्ट्री ओमिट कर दिए कि टेटनस मदर को लगा कि नहीं लगा, तो वी हैव मिस्ड द डायग्नोसिस ऑफ टेटनस इन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. तो वहाँ पे टेटनस टॉक्सॉइड लिया मदर ने कि नहीं लिया, वो उसकी हिस्ट्री ज़रूरी हो जाती है. देन सेकंड है कि एनी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एट 2 to 3 months पीरियड टू प्रेगनेंसी, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि प्रेगनेंसी कोई भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन किसी भी ले रहे हैं हम, जैसे मीजल्स है, रूबेला है या कोई और है, तो उनकी लेने के 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं देखी जाती है, बिकॉज दे कैन कॉज ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन ऑफ द फिटस एंड कैन कॉज वेरियस congenital एनोमली, जैसे congenital रूबेला सिंड्रोम की बात करते हैं, या जैसे HPV की लगाते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीनेट करते हैं, तो उसको भी नहीं लगाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान या पेरिकॉन्सेप्शनल पीरियड में. तो ये सारी चीज़ें जो हमने एंटीनेटल हिस्ट्री में लेनी है. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस में दिस इज़ सफिशिएंट. इतना भी याद रखेंगे तो बहुत ज़रूरी है, खासकर जब डेवलपमेंटल डिले वाले केसेस हमारे पास आते हैं. बहुत सारे बच्चे जो सेरेब्रल पाल्सी वाले आते हैं या डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट वाले आते हैं, ऑटिज़म वाले आते हैं, या हमारे पास जो congenital एनोमलीज वाले बच्चे आते हैं, उनमें इस तरह की हिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. या फिर इन्फेंट्स हैं, न्यूबॉर्न्स हैं, neonates हैं, उनमें भी जो बर्थ हिस्ट्री में एंटीनेटल हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास. थैंक यू. You can send me queries on my WhatsApp number. Thank you.